I'm available 24/7 to help solve issues. Right. Call me 3 a.m. on a Sunday morning, I don't care. A cross-pollination of Thomas Edison and Tony Stark, Elon Musk. Were you a little naive when you thought I can easily build an electric car and a rocket? I didn't think it would be easy. Like I said, I thought they would probably fail. But you know, like creating a company is almost like having a child. So it's sort of like, how do you say your child should not have food? So once you have the company, you have to feed it and nurse it, and take care of it, even if it ruins you. Yeah. But suppose there were some tough times in 2008, end of 2008. How did you get through that period of crisis? Yeah. Can we just break for a second? Sure, yeah, of course. Yeah. You want to wait a little while? Man, I sure hope it was worth it. Sure hope so. Sure hope it was worth it. It's everything. And I was borrowing money from friends to pay the rent. Well, I mean, Tesla really faced a severe threat of death due to the Model 3 production ramp. Essentially, the company was bleeding money like crazy, and just if we didn't solve these problems in a very short period of time, we would die. And it was extremely difficult to solve them. How close to death did you come? Within single-digit weeks. 22 hours a day, or like what? How many I hours? was working, so 7 days a week, sleeping in the factory. I worked in the paint shop, general assembly, body shop. Do you ever worry about yourself imploding? Like it's just too much? Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. People should not work this hard. They should not do this. It's very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. Where do you come up with your best ideas? Are you on vacation, or are you kind of just like in the middle of the night you wake up and start drawing things down? Or you know, sounds really cliche, but like the shower is probably like wake up and go to shower in the morning. And I think actually what's really happened is kind of stuff is percolated in the subconscious. Right. And it's not really occurring in the shower, but you're kind of getting the results of last night's computation, basically. Right. Whatever area that you get into, given that even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. I'd say also if you like what you're doing, you think about it even when you're not working. I mean, it's something that your mind is drawn to, and if you don't like it, you just really can't make it work, I think. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Starting a business, I'd say, number one is have a high pain threshold. That's it. There's a friend of mine who's got a good saying, which is that starting a company is like eating glass and staring into the abyss. Okay, that's generally what happens, because when you first start a company, there's lots of optimism and things are great, and then so happiness at first is high. Then you encounter all sorts of issues, and happiness will steadily decline, and then you'll go through a whole world of hurt. And then eventually, if you succeed, and in most cases you will not succeed, and Tesla almost didn't succeed, came very close to failure. Then if you succeed, then after a long time you will finally get back to happiness. I think too is you've got to make sure that whatever you're doing is a great product or service. It has to be really great. And I go back to what I was saying earlier, where if you're a new company, I mean, unless it's like some new industry or new market that, if it's an untapped market, then you have more ability to, the standard is lower for your product or service. But if you're entering anything where there's an existing marketplace against large entrenched competitors, then
your product or service needs to be much better than theirs. It can't be a little bit better, because then you put yourself in the shoes of the consumer and they say, why would you buy it as a consumer? You're always going to buy the trusted brand unless there's a big difference. So a lot of times, entrepreneur will come up with something which is only slightly better. And it can't just be slightly better. It's got to be a lot better. Number 3, I'd say, is constantly seek criticism. A well thought out critique of whatever you're doing is as valuable as gold. And you should seek that from everyone you can, but particularly your friends. Usually your friends know what's wrong, but they don't want to tell you because they don't want to hurt you. So lift you up, so you're so they'll say, oh, I wouldn't encourage my friend, so I'm not going to tell him what I think is wrong with this product. It doesn't mean your friends are right, but very often they are right. And you at least want to listen very carefully to what they say. And to everyone, if you're looking for, basically, you should take the approach that you're wrong. That you, the entrepreneur, are wrong. Your goal is to be less wrong. SHUBHIMT SHUBHIMT.com यहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल है, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बैच में आप शामिल हो सकते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, हम उन हर इंसान को अपने साथ लेना चाहते हैं जो अपनी इज्जत, अपनी परवाह करते हैं, जिन्हें अपने से ज्यादा औरों की भी चिंता है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, स्वागत है शुभवर्धन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस की बेहतरीन, लाजवाब, सुपर मैग्नेटिक ऑनलाइन दुनिया में। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैं वो 3 बातें अभी आपको बता दूंगा जो साक्षात हमारे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अगर आ गए तो वो तीनों बातों को खारिज नहीं कर सकते हैं। वो इसी 3 बातों के आसपास आपके लिए कोई दूसरी बात बता सकते हैं, उसकी भाषा को उसको किसी अन्य भाषा से परिभाषित कर सकते हैं, मगर इस बातों को बदल नहीं सकते। और वो आज 2021 में अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत हो गया, अब 2021 वो साल होना ही चाहिए जब आप ग्रो कर जाएं, अपने आप को एक कामयाब इंसान के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो इन 3 सूत्रों को सीख जाइएगा। हमारा जो सिस्टम है शुभवर्धन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस, हमारे द्वारा प्रसारित ये बात
ध्यान से सुनिए, वो 3 बातें हैं। एडेप्टेबिलिटी इज द की, दूसरी भाषा में समझ जाइए कि लर्निंग इज द की, एडेप्टेबिलिटी इज द की। ये आपको वो गुण सीखना है जो सीखने का गुण है। अगर आप सीखने का गुण सीख गए तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। एक बड़ा बात। दूसरा बड़ा बात, चेंज इज कांस्टेंट, यानी जो परिवर्तन है ये निरंतर होता रहेगा। दैट्स व्हाई आपको एक स्पीड की रिक्वायरमेंट है। अन्यथा अगर आप किसी बात को समझ गए हैं, जान गए हैं, उसको लागू करना चाहते हैं और उसमें अगर आपने विलंब की, अगर आपने एक पर्याप्त समय के इससे ज्यादा समय आपने उसमें लगा दिया, तो वो आइडियोलॉजी फिर से पार हो जाएगा और वो कुछ नहीं बचेगा। और ये दोनों बातें अगर आप लागू करना चाहते हैं तो आपको तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपके पास होनी चाहिए, वो है ह्यूमिलिटी, यानी आपके पास विनम्रता होनी चाहिए। आपके हर एक अंदाजे बयां में वो विनम्र भाव होना ही चाहिए। इसके बिना आपका कोई सक्सेस नहीं होना है। बिकॉज ऑफ ये दुनिया आज के डेट में डिजिटली मूव कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी कंपटीशन है। आपकी कंपटीशन इंसानों से नहीं है, आपकी जो कंपटीशन है वो ह्यूमन मेड, इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। अगर आप इसको मोटे भाषा में समझो तो आपका जो कैलकुलेशन करने का ताकत है, कैलकुलेट करने का ताकत है, अगर आपको कैलकुलेटर दे दिया जाए तो कैलकुलेटर एग्जैक्ट आंसर करेगा। उसी तरह से आप किसी बात को सुन के भूल सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन मेड जो मेमोरी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हर एक बात को अपने पास स्टोर करता है, उसे स्टैक करता है, लेयर वाइज लेयर सजा लेता है। उसको दूसरी बार उस बात को बताना नहीं पड़ता है, वो भूलता नहीं है। वो हर नई बातों को अडॉप्ट करता है, पुरानी बातें को स्टोर रखता है। तो कहने का अर्थ है कि आपका कंपटीशन आपके जैसे लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, आपका कंपटीशन मशीन लर्निंग से है, आपका कंपटीशन एग्जैक्ट डाटा साइंस से है। डेटा साइंस इसके लिए आज के डेट में स्पेशली डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होने लगी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो थंब नीचे, बल्ब ऑन नीचे, सिंबल लगाओ, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मामला दर्ज करो। ओके, ये 3 बातें। कौन सी 3 बातें? कि चेंज इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई स्पीड इज नीडेड। दूसरी कि एडेप्टेबिलिटी इज द की, आपकी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले वो कला सीखनी है जो आपको सीखने की कला है। और दूसरा खत्म होने के बाद में तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताया आपको, वो है आपके अंदर विनम्र भाव, आपके अंदर ह्यूमैनिटी होने की जरूरत है। अगर आप तो आपका जो बोलते हैं ना कि पूरा संसार एक वाइब्रेशन पे टिका हुआ है, एक वाइब्रेशन को एक दूसरे के साथ ट्रांजिट करता है। तो आपके अंदर जो विनम्र भाव है, आपके अंदर जो इंसानियत और ह्यूमैनिटी है, वो आपकी सबसे पहली ताकत बनेगी। और आपका जो वाइब है वही आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप जानते हो तो मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी अपने आप में एक इकोसिस्टम है और आपको जब अपना इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है तो पृथ्वी यानी नेचर को आपको समझना होगा कि ये पृथ्वी पानी के अंदर जो वाटर लाइफ है उसको कैरी कर रही है, जंगलों में जो लाइफ है उसको कैरी कर रही है। उसके बाद जब हम लोग हैं इंसान, जो हम लोग बहुत सारे मास हैं, इंसानियत का मास है, हम लोग अपने आप को देख रहे हो भीड़, तो 3 अलग अलग समुदाय हैं, लेकिन इन तीनों के बिना बैलेंस नहीं हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि एक इकोसिस्टम जो पृथ्वी कैरी कर रही है, जो अर्थ कैरी कर रहा है, उसी तरह का एक इकोसिस्टम आप भी कैरी कर सकते हो अगर आपके अंदर पृथ्वी जैसी सहनशीलता और विनम्र भाव होगा, जिसमें सिर्फ आप देने के मूड में आ जाओगे। और जब देने के मूड पे आ जाओगे तो फिर आपका मामला फिट हो जाएगा। देना ही सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है, क्योंकि जब आप कोई हल्का पदार्थ अगर फनल से नीचे उतारोगे तो बहुत इजीली वो नीचे आ जाएगी, लेकिन उसी फनल में जब आप मधु डालोगे तो उसको नीचे आने में वक्त लगेगा। तो आपको अपनी जो कंसिस्टेंसी है, जो आपका जो थिकनेस है ना, उसको बनाए रखना है। वो हो सकता है शुरुआत में कि आपको वो फनल से नीचे उतरने में वक्त लगे, लेकिन वो बात आपको देगा जहां पर जितने लोग आपसे सानिध्य में होंगे, सटेंगे, वो आपसे फिर हट ही नहीं पाएंगे, वो आपसे सटे रह जाएंगे। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम जो ऑटोमेटिकली रन करेगा, एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग आपके बिलीवर, सपोर्टर, आपके फैंस, आपके मुरीद होंगे, ना कि आपके क्लाइंट होंगे। ओके, मेरी बातों से सहमत हो तो भैया लिंक नीचे दिया है, सब्सक्राइब कर लो
और हमारे जो पैनल है उसमें उड़ीसा और बिहार के लिए हमने काफी अच्छा जो हमारे लेडी समुदाय है, हमारे जो महिलागण हैं, उनके लिए हमने पूरी तरह से फ्री किया हमारी सर्विसेज को। और पूरे भारत से 6 साल से लेके 21 साल तक के जो भी स्टूडेंट हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो भारत कहने के लिए नहीं है कि युवाओं का देश है, हमारा भारत युवाओं का देश है, तो उनको कौन संभाल रहा है। तो हमारे पास जो भी ज्ञान है, हम एक स्टूडेंट ही हैं, हम सीखते हैं। जो हम सीखते हैं हम उसी को अनुभव करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, और हमें लगता है कि अगर वो हमारा एक्सपीरियंस में हमारी ताकत बनाए तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये मानते हैं कि अगर हमने उससे फायदा उठाया है तो अगर हम आपके साथ शेयर कर दें तो हो सकता है आप भी उसका फायदा उठा लें। तो दोस्तों, मैंने जो भी लर्निंग मुझे अभी लगा आपसे शेयर करना चाहिए, मैंने वो लर्निंग आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको हमारी बातें छुई होंगी। तो प्लीज, अगर आपने हमारी बातों को महसूस किया है तो इसको तुरंत ही एक्शन में कन्वर्ट करें। हमारी जो ये रिकॉर्डिंग्स है इसको वापस से आप सुने, इसका नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद उसको अमल में लें। धन्यवाद हमारे को यहां तक सुनने के लिए। आप विनर हो। है आपका SHUBHIMT यहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल है, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बैच में आप शामिल हो सकते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, हम उन हर इंसान को अपने साथ लेना चाहते हैं जो अपनी इज्जत, अपनी परवाह करते हैं, जिन्हें अपने से ज्यादा औरों की भी चिंता है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, स्वागत है शुभवर्धन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस की बेहतरीन, लाजवाब, सुपर मैग्नेटिक ऑनलाइन दुनिया में।